Hello friends, welcome. I'm Kem Chandrapati. Today in this particular session we will discuss some of the questions which are asked in different campus recruitment exams. Specifically, if you go for any competitive exam or any recruitment exam, we come across questions on logical aptitude. So let us discuss some questions and try to get idea how these questions are asked and what's exact strategy we can use for solving this question. Here is the first question, which is on blood relation. So most of the time you will find the questions on blood relation. So see, try to understand the modus operandi how you can solve the questions. Blood relation पे question solve करने का तरीका क्या होना चाहिए? Pointing to a boy, Roshni said. The statement is made by Roshni. What Roshni is saying, the boy means he means boy is the only son of my grandfather's only child. Now try to decode this particular last statement. Who is my grandfather's only child? Grandfather's only child is nothing but father. Now I am replacing this whole statement by father and reread this statement. He is the only son of father. Only son of father is nothing but brother. Now what is the question asked? How the person in a photograph is related to Roshni. So person in the photograph is brother of Roshni. So this is called as a jumbled up situation. आपको रिलेशन सीधा सीधा न देते हुए आपको उसको थोड़ा सा घुमाया जाता है. You have to try to understand that particular situation. So what is the learning from this particular question? Try to solve it from last. हाँ, जैसे मैंने माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये पूरे सेंटेंस को फादर का रिलेशन चिपका दिया तो वो इजी हो गया. Next question. Mostly you will find number of questions on number system. नंबर सिस्टम में हमेशा याद रखो कि किस तरह का नंबर सिस्टम आपके पास है. अगर डेसिमल पॉइंट हटा देता हूं, सभी जगह पे दो दो डेसिमल पॉइंट है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल पॉइंट रखा है. अगर डेसिमल पॉइंट में हटा देता हूं, सो माय सीरीज लुक्स लाइक दिस. सीरीज इज लुकिंग लाइक दिस एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर. अभी जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें तो हम डेसिमल पॉइंट रख देंगे. नाउ दिस सीरीज इज इंक्रीजिंग एंड नंबर्स आर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा 75 था, फोर्थ टर्म 2025 है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज है. देख लो एक बार, 75 मल्टीप्लाइड बाय 3 225 होता है माय डियर फ्रेंड्स, और 225 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 675 होता है. सिमिलरली 675 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 2025 होता है. सो वॉट एवर द नंबर इन दिस क्वेश्चन मार्क प्लेस विल बी 2025 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 6075. और सभी नंबर्स जो ओरिजिनल सीरीज है उसमें दो दो डेसिमल पॉइंट्स रखे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 60.75, विच इज ऑप्शन नंबर 2. So always remember, whenever you are solving the questions on number series, तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है पहले देखो. नंबर्स बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं तो एडिशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग. In the following question, alphabets bear a random sequence numbering. Find the numerals that would be represented by the following words. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि A to Z ये 26 इंग्लिश लेटर्स का नंबर्स आपको पता होने चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. Now 1 2 3 4 5 6 letters are given in this word and there are 6 numbers given here. So each letter is represented by a number. If you go to the alphabetical sequence, S का number 19 है, S is on 19, but उसको 24 लिखा है, so 19 plus 4 that is 23. T का number होता है my dear friend 20, T20, उसमें 4 ऐड किया तो 24 आता है. और एक वेरीफाई कर लो, R का नंबर होता है is 18, 18 plus 4 is 22. तो लॉजिक वेरीफाई हो गया, अल्फाबेट्स के जो भी नंबर्स है उसमें 4 ऐड किया है. तो बी का नंबर है 2, 2 plus 4, so your answer should start with 6
ऐसे ही ऑप्शन आप उसका यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ पे 6 से शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपके आंसर हो ही नहीं सकते। आर होता है 18 पे, 18 प्लस 4 22 होगा, यहाँ पे भी 22 है। ओ का नंबर होता है 15, 15 प्लस 4 होगा 19, सो यहाँ पे 17 है तो ये चला गया। ऑन दैट बेसिस यू कैन गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो एवरी केस में प्लस 4 ही होगा ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा। And there is no need to find the complete answer. Sometimes you can eliminate the options. Yes, I hope you people are getting this. अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, आपको पूरा करना है। ये भी आपको लेटर्स के नंबर्स पे से ही आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये जो जो भी सीक्वेंस आपको दिया है इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। जे का नंबर है माय डियर फ्रेंड्स 10, एम का नंबर है 13, पी का नंबर है 16 और एस का नंबर है 19। If you look at this series now, these numbers are increasing by 3 3. These numbers are increasing by 3 3. Now if you increase this 19 by 3, you will get 22, and on 22 we have alphabet V, so the V is your answer. So instead of dealing with letters, convert the letter series into number series. That will become super easy. Okay, let us go to the next question. Again, this is on number series. Let us give numbers to these alphabets. So W का number होता है 23, T is on 20, P is on 16 and K is on 11. Look at how the decrease is happening. This is minus 3, minus 4, now it is minus 5. So the next term will be minus 6. So 11 minus 6 is 5. Now think about which letter comes on 5. 5 पे कौन सा आता है my dear friend? That is E. So that is your answer. याद रखना आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन नंबर सीरीज। डी, ए डी आई पी नंबर्स दो इनको। ए का नंबर 1 है माय डियर फ्रेंड्स, डी का नंबर 4 है, आई का 9 है और पी का 16 है। लुक एट दिस, इसमें रिदम है। दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, so next should be 5 square. 5 square is 25, and on 25 we have alphabet Y, so this is your answer. Y is absolutely correct answer. uh, Next question. Now here one term is wrong and where to find that wrong term, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और समटाइम्स ये बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो आप, बहुत बड़ा लंबा आपको सीरीज दिया हुआ है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते। देखो what I can see, 3 to 8 this number is increased by 5, from 8 to 13 this number is again increased by 5, 13 to 18 this number is increased by 5, from 18 to 23 this number is increased by 5. So the one series in which the numbers are increasing by 5. If you look at the second series my dear friend, second series में आपको यहाँ पे देखो, this number is increased by 10 and again this number is increased by 10, दो बार 10 रिपीट हुआ। और कहीं पे भी ऑप्शन में 32 और 42 आपको रॉन्ग टर्म्स नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब यह है यहाँ का भी इंक्रीमेंट 10 होना जरूरी था और यहाँ से 10। अगर मैं इसको 2 को 10 से बढ़ाता हूँ, सो दिस 9 शुड बी रिप्लेस्ड बाय 12, एंड व्हाट इज 12 प्लस 10, दैट इज 22। सो बाय रिप्लेसिंग 9 बाय 12 आपका सीरीज कंप्लीट हो रहा है। सो विच इज द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज? 9 इज द रॉन्ग टर्म। आई होप यू गॉट द लॉजिक, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको तरीका पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के वक्त बहुत ज्यादा वक्त ले सकता है। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म। नाउ आई मींस दिस इज माय सिंसियर सजेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपके कम से कम 1 to 20 तक के स्क्वायर्स आप कर लो माय डियर फ्रेंड, जितना भी वक्त आपके पास है उसमें। और 1 to 15 तक के क्यूब्स आपको पता होने चाहिए, कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप लिस्ट देख लो एक बार। नाउ इफ यू लुक एट दिस एंड आप ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज इन टू पार्ट्स, so what I am finding here, this is 25,
This is yes, this is 5 है, this is 5 है, and this is 125 नहीं, this is 25 है. So what we are finding, what is 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 5 square is 25, but 4 square has to be 16, but यहाँ पे 20 दिया है. So this is a wrong term. This is a wrong term. Tomorrow means whenever you are going to appear for this particular test, देख लेना उनमें कम से कम squares and cubes से related 5 से 6 questions आपको मिलेंगे. 5 to 6 questions on only squares and cubes, 5 to 6 questions on A to Z alphabet. 10-12 क्वेश्चन जो आप ये पर्टिकुलर रेस में अहेड जाने के लिए आपको जो जरूरी है वो तो आप इतना सिंपल चीजों से आप ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग. ओके, नाउ अगेन these letters are coded with letters, so it is better to give them numbers. देखो फेलिवर का अगर मैं लेता हूं, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं पहले. यस, इसका नंबर 6 है एंड दिस आई का नंबर 9, डी का नंबर 1 है, सॉरी ए का नंबर 1 है और डी का नंबर 4 है. I is on 9, L is on 12. So what you can see, there is plus 3 here. Again plus 3, plus 3. L is on 12 my dear friends and O is on 15. So verify हो गया, plus 3 सभी जगह पे हो रहा है. E का नंबर 5 होता है और H का नंबर 8 होता है, plus 3 हो रहा है. So आपको डेस्टिनेशन का निकालना है. So अगर लॉजिक अगर आपको पता हो गया तो आप डेफिनेटली इसका आंसर निकालते वक्त ऑप्शंस की तरफ भी देखो. So D का नंबर 4 होता है, 4 plus 3 that is 7. On 7 we have alphabet G. So all options are starting with G and all options are ending with Q. तो पहला और दूसरा आखिरी वाला देखने की जरूरत नहीं है. E का नंबर क्या होता है? E का 5 होता है, 5 plus 3 is what? 8 and on 8 we have H. S का नंबर 19 होता है, 19 plus 3 that is 22, 22 पे होता है V. GHV, GHV, तो आपका ऑप्शन 2 नहीं आएगा. T का नंबर होता है 20, 20 plus 3 is 23 which is W. So GHVW, GHVW यहाँ पे है, GHVW यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. नेक्स्ट I का नंबर होता है 9, 9 plus 3 that is 12. 12 पे कौन सा अल्फाबेट है? L. L यहाँ पे नहीं है तो ये चला गया. अभी देख लो N का 14, 14 plus 3 that is 17 पे Q होता है यहाँ पे. A का नंबर 1 होता है, 1 plus 3 that is 4, 4 पे क्या होता है? D होता है. Q के पास D यहाँ पे है, यहाँ पे Q के पास M है, सॉरी Q के पास D पहले दिया थी. ओके, ये गया. सो आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा. सो एवरीवन अंडरस्टूड द लॉजिक. अल्फाबेट्स के नंबर्स में 3 ऐड करके जो अल्फाबेट आता है वहां पे काम किया गया है. सो गिव नंबर्स टू अल्फाबेट. Next, you have to complete this series again. Okay. सीरीज बहुत अगर लंबा है तो उसको अल्टरनेटली देखो. देखो 5 4 5 5 6 6 7 7 8. नाउ 16 32 32 96. ओके, सो अगर आप इस तरह से अगर जाते हो तो यहाँ पे डबल किया है, दिस इज डबल, दिस इज ट्रिपल. नाउ यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा. Now 96 का 4 टाइम्स अगर लेते हो so it should be ending with 4. एंडिंग 4 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज 2. Why to waste our time? उतना ही आने वाला है, करके देखो आप, पूरा उतना ही आने वाला है. इतना स्मार्टनेस आपको यूज करना होता है. और ऑनलाइन टेस्ट में आपको एक ही वक्त आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाता है तो आप इस तरह से ऑप्शंस की हेल्प लेके बाकी के ऑप्शंस उड़ा सकते हो. डेफिनेटली उड़ाओ. ओके, चलो अभी अगेन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन सीरीज. 1 9 17 33 49 73. नंबर्स बढ़ रहे हैं. just look at the pattern how these numbers are increasing. This number is increased by 8, again this number is increased by 8. now look at this number is increased by 16, फिर से 16 से बढ़ा. अभी देखो कितने से बढ़ा है. now this number is increased by 24. now number is increased, so this next number will also increase by 24. So 73 plus 24, that is 97, which is your option number 2.
ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। नंबर्स एक पर्टिकुलर रूल से अरेंज किए गए हैं, वो रूल ढूंढने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड। वंस यू गॉट दैट रूल, योर टास्क बिकम इजी। यस, नाउ अगेन नंबर सीरीज, आई एम फोकसिंग ऑन नंबर सीरीज बिकॉज ये ज्यादातर पूछा जाता है आपको। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। नाउ दिस नंबर इज इंक्रीज बाय 5, देन इंक्रीज बाय 9। लुक एट दिस पैटर्न, ये आखिरी का पैटर्न देखो, यहाँ पे नंबर ये कितने से बड़ा है? दिस नंबर इज इंक्रीज बाय 21, and again here if you look at this number is increased by 66, then 24 and 25. Okay, so look at this, 21 to 25 का distance भी 4 का है। So if you increase this number by 4 means that means 13, so 15 plus 13 is 28, और 28 को अगर आप 17 से बढ़ाते हो तो 45 मिलेगा। मीन्स डिफरेंस का डिफरेंस, दिस इंक्रीमेंट इज 4, दिस इंक्रीमेंट इज ऑल्सो 4, दिस इंक्रीमेंट इज 4। सो टू लेयर सीरीज जिसको हम बोलते हैं, टू लेयर सीरीज हम बोलते हैं। सो 28 इज अ करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? इंक्रीमेंट 5, देन 9, then 13, then 17, then 21 and then 25. So इनका इंक्रीमेंट 4 4 का है। These all numbers are increasing by 4 4. So इसलिए इसको बोलते हैं हम टू लेयर सीरीज। दिस इज अ टू लेयर सीरीज। यस, let us take next question which is on again coding and decoding. In certain coding language, this particular word is coded in this fashion. Now see, यहाँ पे 2 बार L आया है तो यहाँ पे J दिखाई दे रहा है। ओके, सो लॉजिक यहाँ पे वर्कआउट होना चाहिए कि आपको सिक्वेंशियल लॉजिक है। M का नंबर 13 है तो K का नंबर 11 है, -2 किया है। A को हम 27 भी ले सकते हैं, Y का नंबर 25 -2 किया है। R का नंबर 18 है, P को 16 है, -2 लॉजिक है। सो D का नंबर क्या होता है? देखो D का नंबर होता है 4, 4 -2 is 2, on 2 we have B alphabet, so your answer should start with B। all सभी का आपको B दिखाई दे रहा है, सभी B दिखाई दे रहे हैं। नाउ लुक एट दिस। ओके, सो वी हैव D here विच इज ऑन 4, 4 -2 अगर आप करते हो तो 2 मिलेगा, तो बी से शुरू होने वाला है हमारा आंसर। आखिरी का भी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी का आखिरी वाला सी दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट इज आई? आई इज ऑन 9, 9 -2 दैट इज 7, 7 मींस व्हाट? जी, बी जी सभी तरफ है। नाउ एस का नंबर होता है 19, 19 -2 इज 17, 17 माने क्यू, बी जी क्यू से शुरू होने वाला चाहिए। ये गया, ये गया, ये गया, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ट्राई टू एलिमिनेट द wrong options and save your time, because this save time will help you to get the answer of difficult question or a lengthy question. Next question, Z is written as B, X is written as A। now देखो A to Z अगर आप इस पैटर्न में लिखते हो, A B C D E F G H I J K L M, then N O P Q R S T U V W X Y Z, इस पैटर्न में फर्स्ट 13 एंड नेक्स्ट 13। नाउ Z को किससे? Z इज रिटन इन प्लेस ऑफ B, यहाँ पे Z लिख दिया। X की जगह पे क्या लिख दिया? A लिख दिया। W की जगह पे क्या लिख दिया? W फॉर D, W फॉर D, यहाँ पे W लिख दिया। हाँ, U फॉर C, C के लिए क्या लिख दिया? U लिख दिया। T for F, T for F, okay, T for F, and so on. Then what is the code for this? Now B के लिए क्या लिखा हुआ है? Z लिखा हुआ है, तो Z से शुरू होना चाहिए। बीच में देखो आप, AC आ रहा है, AC आ रहा है, C आ रहा है, सेकंड लास्ट लेटर शुड बी U। सेकंड लास्ट लेटर U है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया।
तो पहले तो ये आपको डिसाइड करना है व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज यूज हियर, ये कैसा लॉजिक यूज किया जा रहा है। इसका नंबर 26 है, तो दो अल्फाबेट्स आगे गए, बट सी को यू लिखा जा रहा है। ओके, सो दे आर जस्ट ड्रॉपिंग वन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट ड्रॉप किया। ओके, देन दो अल्फाबेट ड्रॉप किए, देन एक अल्फाबेट ड्रॉप किया। सो लॉजिक यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो सी for Z. So just write down this as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Z is written in place of B. Okay. तो ये 26 होगा यहाँ पे. Now X is written in place of A. X is written in place of A. This is 24. सो ये x चाहिए हमें, x u चाहिए, x u जगह पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वी वांट दिस। नाउ w is written in, this is 23 and u this is 21। नाउ लुक एट दिस डिफरेंस, इनमें कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, दो दो का डिफरेंस आ रहा है। नाउ विच लेटर दे ड्रॉप, y दे ड्रॉप। ओके, नाउ T फॉर F, सो दिस इज, ये अगर मैं 20 लिखता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 18 मीन्स R। लुक एट दिस डिफरेंस, ये 3 से कम हुआ, ये 3 से कम हुआ, तो ये 17 होना चाहिए। अगर ये 17 होता है तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 पे कौन सा आता है, O आता है। देखो अभी I, अगर दिस इज सी, दिस इज 26 देन 23, 3 से कम हुआ 23, देन 20, 20 देन 70, 17, ये 14 होगा, तो ये 2 से कम मीन्स 12। सो वी हैव बी, बी पे कौन सा है आपका, 26 है, दैट मीन्स जेड, 26 ही जेड का नंबर होता है। आई पे कौन सा है आपका, 12, 12 मीन्स व्हाट, एल, जेड एल। ओके, नाउ जी, जी पे कौन सा है, 15, 15 पे कौन सा होता है, ओ, जेड एल ओ, जेड एल ओ यहाँ पे नहीं है, ये कट गया, ये तो ऑलरेडी हमने काट दिया है क्योंकि ये सेकंड लास्ट यूज चाहिए था, दो ही बचे हैं। नाउ क्या होता है, अभी एफ है, एफ, एफ पे क्या लिखा जा रहा है, एफ पे 20 है, दैट मीन्स टी। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, ये गया। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन टाइम सेव करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अलॉट दैट सेव टाइम फॉर द क्वेश्चन लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एनालॉजी के क्वेश्चन, इसको बोला जाता है एनालॉजी। लेंदी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, in the questions below there is pair of a number given and they have certain relationship। okay, now 343, इसलिए मैंने बोला आपको पहले क्यूब्स आपके लर्न होने जरूरी है। 343 ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, और ये 10 दिया है, दिस इज 7 प्लस 3, दैट इज 10। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है, so this is a cube number, see this is 10 cube, and what is this number, this is 10 plus 3। so the similar relationship वाला pair ये option number 2 वाला हो, that is the answer my dear friend, yes। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज है, ये थोड़ा सा टफ वाला सीरीज है। दिस पैटर्न इज n क्यूब प्लस n सीरीज। मिस सी, 2 is how we can write this 2, 2 is 1 cube plus 1। 10 को कैसे लिखोगे आप, 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब होता है 8, 8 प्लस 2, यस। 30 को कैसे लिखोगे आप, दिस इज 3 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब होता है 27 प्लस 3। 68 को कैसे लिखोगे आप, 4 क्यूब प्लस 4, 4 क्यूब होता है 64 प्लस 4। सो इन दैट पैटर्न योर नेक्स्ट आंसर विल बी 5 क्यूब प्लस 5, एंड 5 क्यूब इज 125 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 130, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ये सीरीज के तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना, ये पैटर्न में ये भी हो सकता है, एन स्क्वायर प्लस एन भी हो सकता है,
और इसमें n क्यूब माइनस एन भी हो सकता है, n स्क्वायर माइनस एन भी हो सकता है. Now, again, where to complete this series? 20, 20, 19, 17. So पहले कितने से कम हुआ? 1, then -2. तो अभी क्या होगा? -3. -3 अगर करते हो तो 14 will be your answer. Yes, ये simple था. So beer is written as 5, 8, 4, 11. So what is happening again? So B का number 2 है. So that is 3 is added. E का number 5 है. 3 added, that become 8. A का number 1 है. 3 added, that become 4. R का number 18 है. That become 21. That means addition of 3. तो 9, 21, 8, 4, 10, 8. ये कौन सा किस वर्ड का कोड होगा? पहले इसमें से तीन तीन सब्सट्रैक्ट कर दो. 3 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 6, 18, 5, 1, then 7, and then 5 again. On 6 we have alphabet F. On 18 we have alphabet R, then E. F R E, F R E. ये नहीं होगा. Okay, then on 1 we have A, F R E A. On 7 we have G, and on 5 we have E. So your answer is option number 2. A very good question. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनालॉजी पे है. 36 और 129690, ये वाला लॉजिक आपको ढूंढना है. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि 36 का स्क्वायर पता होना जरूरी. 36 का स्क्वायर होता है 1296 और उसमें से ही 6 की माइनस किया, मींस दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36. नाउ पहला नंबर भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा दिस वन, 25. 25 and 620. So what is 25 square? 25 square होता है 625 और उसमें से ये पहले नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ 25 इस 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो दैट इज 620. दिस इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग. क्लाउड को इस तरह से लिखा जा रहा है. नाउ सी का प्रीवियस अल्फाबेट होता है बी. बी से कोड किया गया है. ओ का प्रीवियस अल्फाबेट होता है एन. यू का प्रीवियस अल्फाबेट होता है टी. तो अल्फाबेट्स अगर आपने लिख लिए हैं, सो अगर आपको पेपर पेंसिल यूज करने का परमिशन मिलता है तो ए टू जेड मैंने अभी जैसे फर्स्ट 13 ए टू एम एंड एन टू जेड ऐसे लिखे थे विद देयर नंबर्स लिख लो. बिकॉज वो आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चंस में काम में आने वाले हैं. तो ये लॉजिक हमें यूज करना है. एम का प्रीवियस लेटर होगा एल. हमारा आंसर एल से शुरू होने वाला चाहिए. ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते. ओ का प्रीवियस लेटर होगा एन और यू का प्रीवियस लेटर क्या होता है? दैट इज टी. एल एंड टी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1. ये भी ऑप्शन कट जाएगा. ट्राई टू इलिमिनेट द ऑप्शन. जब बड़ा वर्ड दिया जाता है तो कंप्लीट आंसर ढूंढने से अच्छा है कि रॉन्ग ऑप्शंस आप इलिमिनेट करो. Okay, so in this fashion, my dear friend, I tried to cover questions from blood relation, number series, letter series, coding and decoding, which are most likely questions in your aptitude exam. I hope you enjoyed this particular session. Okay, if you really like this particular session, just mention this in comment box. Just like the video and share it to as many people as you can. All the best for your all exams. Thank you very much. Bye bye. Happy learning and good night.